Dear student, now we were discussing about the reaction of metals with acid. So in the same sequence now we will see how metals react with dilute acid HCl, different metal. In this lecture we will see reaction of magnesium with dilute acid. How magnesium react with dilute acid? See, as we have seen that when metal react with acid dilute, they form first of all they displace hydrogen, means ये एसिड से हाइड्रोजन को निकालेगा. कैसे? इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. So first of all, in product side write H2 gas. See, this is H2 gas. Clear? Now what is left? Mg and Cl. These two will react to form salt. How? Magnesium valency is 2, whereas Cl valency is 1. So on crossover it will form MgCl2. So salt of magnesium, formula of salt of magnesium is MgCl2. MgCl2. Now see, it's time to balance the reaction. On product side, how many hydrogen are there? 2. And in reactant side, how many hydrogen? Only 1. So in order to balance it, put here 2. Now reaction is balanced. See, this side 2 hydrogen, on product side also 2 hydrogen. Reactant side now we have seen 2 chlorine atom. Product side also 2 chlorine atom. Reaction is balanced. So whenever magnesium react with dilute hydrochloric acid, it forms magnesium chloride, which is the salt of magnesium, and hydrogen gas is liberated. Another reaction, say reaction of aluminum with dilute HCl. We know whenever a metal which is above hydrogen in the reactivity series will react with an acid, it will form हाइड्रोजन गैस. वंस अगेन आई रिपीट, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा या देखा जैसे कि वो सारे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हैं, हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं, अगर वैसे कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. सेम इज द केस हियर. सी एल्युमिनियम. एल्युमिनियम इज above the hydrogen in reactivity series. इसका मतलब ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसके एसिड से HCl जो एसिड उससे हाइड्रोजन को ये निकालेगा. बट कैसे? इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस भी निकाल दिया. एंड नाउ द रेस्ट पार्ट, ये H2 निकल गया, बच गया हाइड्रोजन निकल गया, तो ये क्या बचा? Cl. तो बचा हुआ पार्ट, एसिड का बचा हुआ पार्ट मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा. व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? सी फॉर्मूला विल बी हियर एल्युमिनियम. सी एल्युमिनियम, इट्स वैलेंसी वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर, वैलेंसी इज 3. एंड क्लोरीन, इट्स वैलेंसी इज 1. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन all has valency 1. So on crossover, see, you will get the formula of salt. Which salt will form? It will form, see, Al1. So 1 we don't write generally, and Cl3. Cl3. So salt will, formula of the salt will be AlCl3. This is the salt. Now how to balance the reaction? See, this side how many chlorine are there? 3. Clear? This side only 1. And hydrogen, see, hydrogen is 2, this side 1. So first we can do one thing, that put here 2. Put here 2. In this way, see, in order to balance hydrogen, if we are putting 2 here, so 2, 3 just 6. Put here 6. See, 6 HCl. This reaction is important, please pay attention. 6 HCl. Clear? Now how many hydrogen are there in reactant side? Total hydrogen 6, but this side only 2. So in order to make
लेकिन अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3H2। Clear? Now on product side, after balancing, we have how many aluminum atom? 2, and this side only reactant side 1. So make it 2. Put here 2. This is the balanced chemical equation taking place between aluminum and hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid. Clear? Now we will see one more thing here. See about this reaction. One important note. This reaction of aluminium with हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है। एट द बिगिनिंग रिएक्शन बिटवीन एल्युमिनियम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज क्वाइट स्लो, ये काफ़ी स्लो होता है, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स रैपिड। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? सी रीजन इज दैट एल्युमिनियम बीइंग ए रिएक्टिव मेटल, ठीक है, एल्युमिनियम को जब भी आप रखते हो ओपन एयर में तो इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड फॉर्म एन ऑक्साइड। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास ये एल्युमिनियम का रॉड है, इसको आपने ओपन एयर में रखा हो तो इट विल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम जो है जो सरफेस पे है वो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिसके चलते वो एल्युमिनियम का आर्टिकल, ठीक है, उसके ऊपर एक कवर चढ़ जाता है ऑक्साइड का, प्रोटेक्टिव लेयर, जो उसको रिएक्ट होने से रोकता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई रिएक्शन इज स्लो इन द बिगिनिंग। क्लियर? बट वंस दिस लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर इज डिजॉल्व इन एसिड, जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो ये ऑक्साइड लेयर जिसको प्रोटेक्ट कर रहा था रिएक्शन से वो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है एसिड में, एंड मेटल इज एक्सपोज्ड आउट, जो मेटल था प्योर मेटल वो बाहर आता है। एंड वंस दिस हैपन रिएक्शन बिकम्स रैपिड, रिएक्शन फास्ट होने लगता है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनी डाइल्यूट एसिड इज क्वाइट स्लो इन द बिगिनिंग। शुरुआत में ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, बट आफ्टर सम टाइम दिस रिएक्शन बिकम्स रैपिड ड्यू टू द रीजन दैट प्रोटेक्टिव लेयर विथ protective oxide layer of aluminum gets dissolved in acid. Look at the board C. Here notes, this reaction is quite slow in the beginning. एल्युमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन है ये काफ़ी स्लो होता है शुरुआत में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर की उपस्थिति के कारण ये स्लो होता है, ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल के ऊपर एक कवर रहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो नेचुरली बनता है, बिकॉज एल्युमिनियम बीइंग रिएक्टिव रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्म्स अ लेयर ओवर इट्स सरफेस। तो ये सरफेस जो है ये ऑक्साइड लेयर उसको रिएक्ट होने से रोकता, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। बट वंस दिस लेयर गेट्स डिजॉल्व इन एसिड, एक बार एसिड में ये घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए, एंड फ्रेश मेटल इज एक्सपोज्ड, इसके अंदर जो फ्रेश मेटल था वो जैसे बाहर आएगा रिएक्शन टेक्स प्लेस रैपिडली। अब ये रिएक्शन काफी फास्ट हो जाता है। क्लियर?